was Augusta Westland, collaboration with Tata to assemble the VVIP helicopters. Now, if we go back a few months ago, it is the same company which was found involved in corruption, and the case is going on in Italy. But similar case, which should have seen the light of the day in India, has somehow gone into a back burner, and nobody is getting to know what really is going on in the matter. A company which should have actually been blacklisted has actually been getting promotional advantage by letting this kind of collaboration take place and not giving it a blacklisted tag and not closing the deals, whereas in fact all the deals should have been scrapped on the charges of corruption. And in light of the past record, Augusta Westland should have been banned from entering into any collaboration or any business transaction in our country. As if this was not enough, another interest which is being seen perpetuating in this country is a Taliban cleric who was allowed to participate in a conference under the very eyes of our intelligence agencies in the state of Goa. And this has again happened because of the actions of the central government. Whereas if we juxtapose this to the prevailing agreement which is going on and the atmosphere which is going on in Afghanistan, 4 countries mainly are participating in a settlement for Afghanistan. That happens to be US, UK, China and Pakistan. Whereas India is nowhere to be seen at an international front while a settlement or a solution is being worked out for Afghanistan. This is where our foreign policy seems to be stagnated today. The other line which has happened, and that also yesterday, happens to be the case where Sartaj Aziz has been permitted to meddle in the internal affairs of India, has been allowed to speak to separatists under the nose of the central government in Delhi itself. And this is the manner in which central government is dealing with the issues of security. I really do not understand the good acts which have been performed by the Pakistani government to avail this kind of warm welcome by the central government. While the soldiers, Indian soldiers are getting beheaded, constant shelling has happened on the border. Kiran sector, we know what happened. We know what happened earlier in Samba sector. Repeatedly, such acts of incursions are being indulged in by the Pakistani forces, and yet the central government seems to be playing along with the foreign powers against the national interest, and that is something which we all need to understand and appreciate. And we are questioning that we fail to understand and we fail to appreciate the kind of engagement and involvement the central government is showing, and especially the Ministry of Foreign Affairs and Home Affairs in these issues. The stand of India has been repeatedly compromised by UPA government only and only for the political purposes, and same is being seen as what the PM has made couple of statements about the CBI. CBI is being used as a private militia of the Congress government against the opposition, or to arm twist the opposition at times. And when they are talking about speaking against the grain, they will talk about the CBI should be given autonomy without consulting the papers on the autonomy issue, which have been in existence for a fairly long time, discussing about how CBI should not meddle in the case and investigate on policy issues, whereas even JPC has not been permitted to investigate the matter in terms of the policy issues. So repeatedly, Prime Minister's office and the government offices are speaking in different tone and tenor,
and while dealing with the subject are engaging in a completely different manner. So there is a wide gap between the speech and the action, be it CBI, be it the foreign affairs, be it the interest of the country, be it Zaif, Mullah Zaif, and be it the Augusta Westland. On one side, we will see India free of corruption. On the other side, it is the very corrupt and foreign powers whose interests are being enhanced by the UPA government. मित्रों, आज जिस प्रकार से 3-4 विषय आए हैं और उन सब में एक ही बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वो दिखाई देती है कि जितनी विदेशी ताकतें हैं उनको इस देश से क्या क्या फ़ायदा उपलब्ध कराया जा सकता है, यही यूपीए सरकार की मनोनीत पॉलिसी है। और उसमें भारत के प्रति क्या रुख रवैया है, उसकी या तो जानकारी नहीं है, या जानकारी होते हुए भी उसके विपरीत काम हो रहा है, भारत के विपरीत काम हो रहा है। चाहे वो मौलाना ज़ईफ़ की बात हो, जो कि तालिबान के एक मौलवी हैं और उनको भारत में आने दिया गया और भारत में उन्होंने अपनी बात की। और उसी संदर्भ में अगर हम अफ़गानिस्तान के फ़ैसले को देखें तो वहाँ पर 4 देश मिलकर अफ़गानिस्तान के फ़ैसले पर बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये 4 देश शामिल हैं। और भारत का उसमें कोई स्थान नहीं है ऐसे फैसले में। क्या ऐसा कभी आपने आज से पूर्व में देखा है कि अफ़गानिस्तान के संदर्भ में कोई फैसला लिया जा रहा हो और भारत को उसमें पूछा तक नहीं जा रहा हो? और उन्हीं मौलवी और उन्हीं मुल्ला जो तालिबान के लोग हैं, उनको हम लोग अपने यहाँ पर बुला रहे हैं। और साथ ही अगर आप अगस्ता वेस्टलैंड की डील को देखें तो अगस्ता वेस्टलैंड वो कंपनी है जिसको 360 मिलियन डॉलर्स की जो है किकबैक मिली थी, उनको पैसा दिया गया था। और उस मामले को लेकर इटली के अंदर भी अभी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है। भारत में उस मामले को लेकर क्या हुआ, इसकी हमारे में से किसी के पास जानकारी नहीं है और पता भी नहीं है। और उसी के पीछे टाटा कंपनी के साथ एक डील करके उनको आज़ादी दी गई है कि एफआईपीबी ने उनका जो प्रोग्राम है उसको भी अनुमति दे दी है कि वो भारत में आकर अपना जो है उसको असेंबल करें, हेलीकॉप्टर्स को असेंबल करें। और जो ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए थी कंपनी, उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। इसी संदर्भ में अगर थोड़ा और देखें तो सरताज अजीज़, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, और उनको भी भारत की भूमि पर आज़ादी दी गई है कि वो आएँ और जो भारत के विरोधी ताकतें इस देश में मौजूद हैं उनसे आकर बातचीत करें, और कहीं और नहीं दिल्ली में बल्कि उनको मिलने की, बैठने की अनुमति दी गई है। जिन ताकतों के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए, सख्ती से कदम उठाए जाने चाहिए और सख्ती का रवैया होना चाहिए, उनको घर बुलाकर इस तरीके की आज़ादी दी जा रही है। जबकि जो प्रश्न भारत को एक भारत की सरकार होने के नाते इन तमाम ताकतों से पूछने चाहिए, वो नहीं पूछे जा रहे हैं। और यही हम इसके खिलाफ हैं और हम इसमें अपनी पूरी सख्त प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि ये अनुमति जो है वो भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ है और इस तरीके की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी जो स्टैंडिंग है वो कमज़ोर होती है और जो गैर कानूनी चीज़ें हैं उनको आप कहीं ना कहीं कानूनी रुख और कानूनी तौर पर उनको जगह बनाने की राह देते हैं और उनको राहत प्रदान की जा रही है। जो भारत विरोधी ताकतें उनको राहत प्रदान की जा रही है। और कथनी और करनी में बहुत अंतर है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब एक तरफ सीबीआई के विषय में बात करते हैं कि उनको पूरी तरीके से काम करेंगे और उनके कानूनी तौर पर जो भी मदद हो सकती है वो की जाएगी, जबकि इसके ऊपर जो कागजात मौजूद हैं कि किस तरीके से हाउस के अंदर कागज़ पास हुए कि किस तरीके से सीबीआई को जो है आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाने के लिए, राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए काम कर सकते हैं, उन विषयों पर कोई काम नहीं हुआ। और बल्कि सीबीआई का लगातार इस सरकार ने दुरुपयोग किया, एक प्राइवेट मिलिशिया, एक प्राइवेट बॉडी के रूप में। और लगातार भारत के जितने संस्थान हैं जो कि
लोकतांत्रिक संस्थान है, लोकतंत्र बनाए रखने के लिए जिम्मेवार संस्थान है, उन सब का लगातार दुरुपयोग ये सरकार करती चली आई है। कोई भी आपके प्रश्न हो तो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। देखिए, ये इसके ऊपर अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब आपने क्योंकि प्रश्न पूछा है तो मैं जवाब ज़रूर देना चाहती हूँ कि इस पे मेरा एक इंडिया टाइम्स पे ब्लॉग है जिसके ऊपर मैंने कहा है कि आप पार्टी जो है वो कांग्रेस का ही फ्रंट है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आपकी मदद की है, एक नहीं कई जगह की है। और परसों की बात है कि हमारे जो पहले नेता प्रतिपक्ष रहे हैं दिल्ली के अंदर, विजय कुमार मल्होत्रा जी, उन्होंने भी ये बात अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि आपकी फंडिंग को लेकर। और ये बात आज की नहीं है, आज से 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले आप ही के चैनल पर शायद मैंने ही किसी डिबेट में ये प्रश्न उठाया था कि फंडिंग को लेकर, तो कहा गया था कि 2 मंत्रियों ने क्लीन चिट दे दी है। तो मैंने कहा मंत्री क्लीन चिट कब से देने लगे, क्योंकि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला है और एफसीआरए गृह मंत्रालय के तहत आता है और उसकी जांच एजेंसी होती है, तो क्लीन चिट मंत्री कैसे देने लग गए। जब ये सब उनको लगा कि ये सब चीज़ें पब्लिक परव्यू में आएंगी और अभी वो अपलोड भी हो गया है, तो उसको प्रिएम्प्ट करते हुए शायद आधे घंटे के इजाफे में ये बयान आया है। तो या तो मैं गलत सोच रही हूँ या ऐसा कोइंसिडेंस है कि दोनों बातें साथ ही साथ हुई हैं, क्योंकि इन प्रश्नों के साथ हम लोगों के बीच जा रहे थे और पूछ रहे थे कि फंडिंग आने से पहले एफसीआरए के तहत अनुमति गृह मंत्रालय की चाहिए होती है। और जहाँ तक कानून का विषय, मैं आपको 2-3 सेक्शन बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो मैंने निकाला भी था। ये चैप्टर 2 है, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। इसमें जो सेक्शन 4 है वो कहता है कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एटसेट्रा नॉट टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। आगे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, जज, मेंबर लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस देयर ऑफ, ये ई है। ए और ई, 4A एंड 4E। और फॉरेन क्या है वो सेक्शन 2 बताता है, जिसके मुताबिक फॉरेन सोर्स किसको कहा जाता है। फॉरेन सोर्स 2E बताता है द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी एंड एनी एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट, एनी इंटरनेशनल एजेंसी नॉट बीइंग द यूनाइटेड नेशंस और एनी ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, द वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा, अ फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ 591 ऑफ कंपनीज एक्ट। और मल्टीनेशनल, इसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 वो इसको बार करता है। साथ ही इनकम टैक्स एक्ट जो है वो भी इसको जो है बार करता है, जिसका सेक्शन 13A और 13B ऑफ आईटी एक्ट और रेड विद रूल 17CA ऑफ आईटी रूल्स, रेड विद सेक्शन 4 एंड 9 ऑफ एफसीआरए एक्ट। ये तमाम 4 ऐसे एक्ट्स हैं, 4 ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं जिसके तहत फॉरेन फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती है। लेकिन ये मामला बहुत पुराना है, ये नया नहीं है, ये मामला पुराना है। तो टाइमिंग जो है वो प्रश्न चिन्ह लगने वाली चीज़ है कि ये कांग्रेस सरकार के सामने, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ये चीज़ों को अलाउ किया गया, पनपने दिया गया। और जब लगा कि ये राजनीतिक मामला बन रहा है और कहीं ना कहीं आप पार्टी की जो जड़ें कहीं ना कहीं कांग्रेस से मिलती हुई तारें दिखाई दे रही हैं और उसका पर्दाफाश होने वाला है, तो उसको प्रिएम्प्ट करते हुए इस तरीके का वक्तव्य दिया गया है। अगर देश का कानून आपको परमिट नहीं करता तो पैसा आया कैसे, ये बताइए। ये मेरा शिंदे जी से काउंटर प्रश्न है कि जो चीज़ देश के कानून के खिलाफ है, आप इसकी जांच करेंगे, बिना जांच के, बिना तसल्ली बख्श काम किए ये आया कैसे, ये आप बताइए। तो ये तो जो तारे हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एनी अदर क्वेश्चन?
I'll leave it to Shrikant to manage the floor. किससे किससे मुलाकातें होती रही हैं? ये सेपरेटिस्ट को दिल्ली में आने की अनुमति दी गई थी और एक्सट्रीमिस्ट से बात करने की दी। उन्हें कहिए कागज निकालें, ये रेटरिक बंद करें और इस तरीके के जो झूठे बयान वो लगातार दे रहे हैं उसको बंद करें, कागज दिखाने की बात करें। I can only say the gentleman has, I mean, I repeatedly make that mistake that I think Bihar needs many mental health institutes also. It is lagging behind on many fronts and mental health being one. And in this condition, that their plan has flawed is also seems to be the case, because had there been a stampede, and I call it only providence, that by the grace of God, such a thing has been averted. And it is in this context I'm constantly questioning the mindset of people like Nitish Kumar, under whose rule, jurisdiction, a thing like this has happened. 15 bombs could go off. He happens to be the chief minister of a state in which such a thing has happened and has been allowed to happen. Instead of making a courtesy call, instead of showing some condolence message, a person who has called Ishrat as Bihar ki beti is a black mark on Bihar and on this country. Mr. Karthike. हिंदी नहीं, मैं देखिए जो उनकी मनस्थिति है और मानसिक स्थिति है वही प्रश्न चिन्ह लगने वाली चीज़ है। और कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि जो मानसिक संस्थान है बिहार के अंदर बहुत कम है। और उसी के रहते अगर आप पूरे प्रक्रिया को देखें, 15 बॉम्ब किसी रैली में फटे हों और उसमें एक कोई मुख्यमंत्री जो हैं वो उस पर कोई शोक व्यक्त ना करें, जिन लोगों को उस ऐसी जगह पर जो 6 लोग मारे गए और इतनी बड़ी हानि हुई उनके प्रति उनकी कोई प्रतिक्रिया ना हो, जो लोग बच गए उसकी खुशी ना हो, और इतने बड़े हादसे से पूरे राज्य और देश को संभलने को कोई राहत मिली उसके प्रति उनकी कोई प्रतिक्रिया ना हो, बल्कि उसको केवल हर बार राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मुझे उनकी मानसिकता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने की इच्छा करती है कि किस मानस के वो व्यक्ति हैं जो इशरत जैसे लोगों को बिहार की बेटी बताते हैं। वो काला धब्बा है बिहार की मानसिकता पर और साथ ही देश के प्रति भी। मिस्टर कार्तिकेय, I can only call them, they are a confused lot actually. They don't know who to answer, when to answer, what to speak, when to speak. It's a coalition of confused lot. And in that utter confusion and disarray, their answers are also completely out of tune. Because it's the people of this country who are sharing their affection and they're standing with the gentleman. They can call him names, and that is, they are conducting their business like an ostrich. That's all I can say. And calling somebody names does not diminish the stature of that person. It only shows who they are. And coming to the works of Mr. Minority Affairs Minister, he's the same person who's involved in 4 lakh crore worth of scam and usurped the social properties and Waqf board properties in Karnataka. That is the character of this person. Sanjay ji.
देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि मुजफ्फरनगर के अंदर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसमें दो तरीके से सरकार जिम्मेवार थी। पहली जिम्मेवारी उनकी है कि जब वहाँ पर बलात्कार की घटनाएं और ऐसी महिलाओं के प्रति जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थी उसको रोकने में वो असमर्थ थे, और उन्होंने उस मामले को इतनी तूल दी और इतना बढ़ने दिया कि उसने राइट की शेप अख्तियार की, और उसके बाद उसका फिर दोबारा राजनीतिकरण हुआ, और उसमें जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग वहाँ से उसकी वजह से बाहर निकले उनको वापस रिहैबिलिटेट करने की बजाय लगातार उनके ऊपर दबाव बना के रखे हुए है कि वो वापस अपने घर ना जाएं और शांतिपूर्ण माहौल जो है वो बहाल ना हो, क्योंकि अगर वो माहौल बहाल हो जाता है तो इनकी राजनीतिक गतिविधियां खत्म हो जाएंगी। अब तो हम सबको इनसे ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आजम खान जैसे लोगों को जेल कब भेज रहे हैं, अगर देश के कानून के प्रति इनकी कोई सार्थक नीति है तो। हम तो पहले कह चुके हैं कि सरकार कंफ्यूज्ड है, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, कि एक तरफ कह रहे हैं कि चुनौती है, एक तरफ चुनौती नहीं है। तो मैं तो खाली शतुरमुर्ग वाली बात कहूँगी कि दे कैन बेरी देयर हेड इन द सैंड फॉर ऑल आई केयर, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी बात है वो ये है, वो देश के प्रति इनकी क्या इनकी कमिटमेंट है देश के प्रति, वो प्रश्न है कि ये एक तरफ मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के साथ तो आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए और श्रीलंका के साथ आप बेनिफिट ऑफ डाउट मत दीजिए, और श्रीलंका पाकिस्तान नहीं है, ये मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ। जहां श्रीलंका पाकिस्तान नहीं है तो आप उसको पाकिस्तान बनाने पे तुले हुए हैं, और जो पाकिस्तान है उसको आप डीरेकग्नाइज करने पे तुले हुए हैं। उसको आप शायद भारत का राज्य भी नहीं बनाने वाले, उसको भारत का या तो राज्य बना लें फिर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।